Hi everyone, this is Akshay Nagpal and I welcome you all on my YouTube channel. Today we are going to discuss about peer review chapter, which is totally amended, and we can expect at least 4 to 6 marks question from that chapter since it is amended first. And in November 20 exam there was a question in your MCQ exam, in your MCQ questions that was asked as a case study, and that was asked for 7 to 8 marks, they said. And as you can see the level of importance given by the institute, so it increases the importance of this chapter. So we will do the complete chapter in this video, and we will be able to complete it in 1 hour or so. So yes, we will do this chapter completely along with all the amendments. So let's get going, but before that I would like to ask you to please subscribe this channel and press the bell icon as well. All right, so yes, let's get going. So yes, peer review basically consists of 2 words. First word being the peer and second word being the review. The peer word and the review word are the only, if you understand these 2 words, you will be able to infer what this chapter is all about. First word is peer. The peer word is basically means that a person of similar standing. For example, if you are working as an employee in a particular company, then your colleague will be your peer. And in this case, in the case of audit, then there is a particular eligibility criteria given here. But in a layman term, you can simply say that a particular CA with a similar experience as yours is your peer. All right. So second word is review. Review means a re-examination or re-evaluation of a particular something to with the basic aim to improve the quality. And that's all. That's the peer word and that's the review word. It's explanation. So then let's head to the screen for the definitions. All right. So as you can see here, the introduction part. First is about the peer review definition. Peer review definition means an examination and review of the systems and procedures to determine whether the same have been put in place. The systems and procedures have been put in place. The examination of that is by the practice unit for ensuring the quality of assurance services. So the reviewer will examine and review the systems and procedures whether they have been put in place and by the practice unit. Practice unit क्या होती है? Practice unit basically होती है जिसका review कर रहे होते हैं और reviewer होता है जो review करता है. All right. As envisaged by the technical, professional and ethical standards, ये हम आगे पढ़ेंगे, and including other regulatory requirements thereto, and whether the same were consistently applied during the period under review. All right, reviewer का मैंने बता दिया, basically a member duly approved and empaneled by the board. Board here means peer review board. And on fulfilling the qualifications prescribed for the reviewer. Qualifications हम हमारे 5th part में पढ़ेंगे, जो 5th part हम आगे पढ़ेंगे उसमें पढ़ रहे होंगे हम qualifications. Then the practice unit. Practice unit वो होती है जिसका review हो रहा होता है. Practice unit means a firm of chartered accountants or members in practice, practicing whether as an individual name or a trade name or such other entity as recognized by the ICAI from time to time. Peer review board basically है जो कि मार्च 2002 में बना था और उसका statement on peer review रिवाइज हुआ है अप्रैल 2020 में. That's why amendment है ये. ठीक है, ये वाला न्यू पॉइंट है, ये अमेंडमेंट है बहुत बड़ी. That if the statement on peer review shall be deemed to be the guideline of the council. So एक हमारा प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर एक क्लॉज था, क्लॉज 1 of part 2 of second schedule. उसमें बेसिकली बोला गया था if a member in practice contravenes the provisions of the act or guidelines or anything which regulations basically, तो अगर वो contravene करते हैं then that CA in practice shall be liable under professional misconduct. All right, तो इसको स्टेटमेंट ऑन पीयर रिव्यू को गाइडलाइंस का दर्जा दे दिया गया बेसिकली इसमें. और इसमें अगर स्टेटमेंट ऑन पीयर रिव्यू को हम कंप्लाई नहीं करेंगे देन यू विल बी हेल्ड गिल्टी एज अ प्रोफेशनल अंडर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, एज अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, और उसको आपका पेनल्टी लग जाएगा जो कि प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर गिवन है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट पीयर रिव्यू ऑफ ऑडिटर.
पीयर रिव्यू ऑफ ऑडिटर बेसिकली इसमें थोड़ी सी अगर स्टडी मटेरियल देखोगे तो बढ़ाई कर रखी है अपनी। जैसे मतलब हम जो ऑडिटर हैं उन्होंने पीयर रिव्यू इंट्रोड्यूस किया है और पीयर रिव्यू कितना जरूरी है टू एनहांस द क्वालिटी एंड ऑल, तो उसके बारे में बोला गया, दैट्स ऑल। कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर। इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा शुरू होता है ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप से, ठीक है। तो इसको आप रीड आउट कर लेना, दैट्स इट। ज्यादा कुछ इसमें गिवन नहीं है। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स हेड टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक। So now let's head to the objective and scope of peer review. Objective में basically हमारे 3 objectives हैं peer review के। पहला objective हमारा हो गया compliance of technical, ethical and professional standards। इसका मीनिंग आगे दे रखा है टेक्निकल, एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स का। इसमें बेसिकली हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं, इंडेस वगैरह जितने भी होते हैं वो आ जाते हैं, हमारे स्टैंडर्ड्स वगैरह बाकी आ जाते हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हो गए, गाइडलाइंस हो गई, हमारा फ्रेमवर्क हो गया, एंड ये सारे हमारे इस डेफिनेशन के अंदर कवर होते हैं। वो आगे एक्सप्लेनेशन में हम वो भी देख लेंगे। ऑलराइट, तो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव इज अबाउट हैविंग इन प्लेस प्रॉपर सिस्टम्स। सिस्टम में डॉक्यूमेंटेशन भी इंक्लूडेड होता है। ऑलराइट, तो डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली सेकंड ऑब्जेक्टिव है, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, क्वालिटी ऑफ एश्योरेंस सर्विसेज। दिस इज द सेकंड ऑब्जेक्टिव। एंड थर्ड ऑब्जेक्टिव हमारा बेसिकली उसको बोल रखा है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है। थर्ड ऑब्जेक्टिव इज not about finding out the deficiencies but to improve the quality of services। तो ये 3 हमारे ऑब्जेक्टिव्स है। अगर क्वेश्चन में आता है सिंपली ये 3 पॉइंट्स लिख देना, दैट्स ऑल। ऑलराइट, तो इसमें कॉन्साइज आंसर ही होना चाहिए ऑडिट के अंदर। ऑलराइट, सो एक बार हम रीड आउट कर लेते हैं यहाँ से। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीयर रिव्यू। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज अबाउट द कंप्लायंस विद एथिकल, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। तो एथिकल, प्रोफेशनल एंड टेक्निकल स्टैंडर्ड्स में होते क्या क्या है उसको रीड आउट कर लेते हैं पहले। Yes, as per the statement, technical, professional, and ethical standard means first is about accounting standards, which are for the entities other than companies. All right, which was issued by ICAI. Second is about again the accounting standards, but for the companies. All right, और जो companies के लिए होते हैं accounting standards, उसके लिए एक amendment है, that is under section number 133 and made in consultation with the NAFRA। नफरा का इसमें आप जरूर लिखना अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द टेक्निकल, एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एज पर द स्टेटमेंट ऑफ पीयर रिव्यू। तो उसमें ये वाला पॉइंट जरूर लिखना, दैट accounting standards prescribed under section number 133 by the central government based on the recommendation of ICAI and in consultation with the NAFRA, and which are notified as accounting standard in as per rules 2006। ऑलराइट, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 टाइप के हो गए हमारे बेसिकली इसके अंदर। तीसरा हमारा इंडियस आ गया, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन नंबर 133 एंड अगेन वही सेम बात, नफरा वाली, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और रिकमेंडेड बाय आईसीआई, कंसल्टेशन विद नफरा। तो ये सारा सेम लिखा गया है, बस रूल्स हमारे चेंज हो जाएंगे। कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल्स 2015 आ जाएगा उसके अंदर। ऊपर क्या था 2006 था हमारा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 2006 में नोटिफाई हुए थे एंड 2006 रूल्स के अकॉर्डिंग नोटिफाई हुए थे, और इंडियस 2015 में। तो ये पहले 3 पॉइंट्स तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर ही है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडियस वगैरह हो गए। फोर्थ पॉइंट इज अबाउट द स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स के अंदर बहुत सारे स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं। पहला आ जाता है एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स हो गए, फिर स्टेटमेंट्स हो गए, सी पॉइंट में गाइडेंस नोट हो गया, SIA हो गया, स्टेट स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट हो गया, फिर गाइडलाइंस, नोटिफिकेशंस, डायरेक्शंस, अनाउंसमेंट्स, प्रोनाउंसमेंट्स, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द काउंसिल और एनी ऑफ इट्स कमिटीज। सो बेसिकली जितने भी गाइडलाइंस वगैरह इशू किए जाते हैं काउंसिल के द्वारा, तो उसका भी पालन करना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव है हमारा पीयर रिव्यू का। पीयर रिव्यू का ऑब्जेक्टिव क्या था, कंप्लायंस विद टेक्निकल, एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। तो उसके अंदर ये सारा हमारा कवर हो रहा है, हम वो पढ़ रहे हैं अभी। क्या पढ़ रहे हैं ये तो पता है ना, ठीक है ना। ऑलराइट, और फिफ्थ पॉइंट इज अबाउट द फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये हमारा CA फाइनल FR के अंदर भी कवर होएगा। ऑलराइट, और इसके बाद प्रीफेस टू दी स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल हो गया, ऑडिटिंग हो गया, रिव्यू हो गया, अदर एश्योरेंस एंड ऑडिट सर्विस हो गया, इनके सारा प्रीफेस बेसिकली, ठीक है। फिर आता है प्रोविजंस ऑफ द रेलेवेंट स्टैट्यूट्स and rules regulations which are applicable in context of the specific engagements being reviewed including instructions, guidelines, notification। तो ये 6 पॉइंट आप लिखने में पहले 5 पॉइंट लिख देना काफी है, 6 पॉइंट बस आप अपने रेफरेंस के लिए पढ़ लेना, दैट्स इट। तो पहले 5 पॉइंट आप याद रख लीजिएगा, अगर क्वेश्चन में पूछा था तो पहले 5 पॉइंट लिख दीजिएगा, दैट्स ऑल, ठीक है। दोबारा ऊपर आते हैं, अभी तक हमने ऑब्जेक्टिव में बस पहला ऑब्जेक्टिव पढ़ा है,
कंप्लायंस विद टेक्निकल, एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, और उसका हमने मतलब भी पढ़ लिया आगे। ठीक है, सेकंड ऑब्जेक्टिव हमारा क्या था, हैव इन प्लेस प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर सिस्टम इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंटेशन। उसको एक बार रीड आउट कर लेते हैं। हैव इन प्लेस प्रॉपर सिस्टम्स इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंटेशन टू एम्पली डेमोन्स्ट्रेट द क्वालिटी ऑफ एश्योरेंस सर्विसेज, तो क्वालिटी पे ज्यादा जोर दिया गया है। एंड थर्ड पॉइंट भी हमारा सिमिलर है, बट उसमें पहले बोल रखा है कि की ऑब्जेक्टिव जो हमारा पीयर रिव्यू का है क्या नहीं है और क्या है, बेसिकली ऐसे बता रखा है। इसमें बेसिकली बोल रखा है की ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू फाइंड आउट द डेफिशिएंसी बट टू इम्प्रूव द क्वालिटी। ऑलराइट, तो ये 3 पॉइंट हमारा होएगा। दस, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीयर रिव्यू इज नॉट टू फाइंड आउट द डेफिशिएंसीज बट to improve the quality of services rendered by the members of the profession. All right, तो ये हमारे 3 पॉइंट्स खत्म होते हैं ऑब्जेक्टिव्स के। इसके आगे बेसिकली एक कंक्लूजन दे रखा है, इसको भी आप एक बार रेफरेंस के लिए पढ़िए जरूर। ठीक है, अकॉर्डिंगली वेयर अ प्रैक्टिस यूनिट इज नॉट फॉलोइंग द प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स द रिव्यूअर्स आर एक्सपेक्टेड, रिव्यूअर्स मतलब जो रिव्यू कर रहा है, आर एक्सपेक्टेड टू रिकमेंड मेजर्स टू इम्प्रूव द प्रोसीजर्स फॉलोड बाय द प्रैक्टिस यूनिट्स। प्रैक्टिस यूनिट क्या होती है हमारी, बेसिकली प्रैक्टिस यूनिट क्या होती है, जो हमने ऊपर ऑलरेडी डेफिनेशन में पढ़ा था, जिसका रिव्यू हो रहा होगा, जो एश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड कर रही है। और जो रिव्यूअर होता है, जो रिव्यू करता है, रिव्यूअर को सिर्फ ये नहीं देखना कि इसमें क्या क्या गलतियां हैं, उसको साथ ही साथ रिकमेंडेशन भी देनी है दैट व्हाट अ प्रैक्टिस यूनिट कैन डू टू इम्प्रूव द सर्विसेज, टू इम्प्रूव द एश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय देम। ऑलराइट, एंड टू इलैबोरेट फर्दर, द की ऑब्जेक्टिव ऑफ पीयर रिव्यू एक्सरसाइज is not to identify isolated cases of engagement failure but to identify weaknesses that are pervasive and chronic in nature. इसमें बेसिकली ये बता रखा है that is कि हमें सिर्फ आइसोलेटेड केस पे नहीं देखना, मतलब आइसोलेटेड केस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना। फॉर एग्जांपल, अगर आप रिव्यूअर है और आप एक प्रैक्टिस यूनिट का रिव्यू कर रहे हैं और आपने 6 सैंपल्स लिए, 6 एश्योरेंस सर्विसेज ली, 6 सैंपल्स लिए कि इन सब का हम चेक करेंगे कि सब कुछ प्रॉपर है या नहीं है, और आपने 6 के 6 केसेस में एक गलती देखी विच इज क्रॉनिक इन नेचर, मतलब वो परवेसिव है, वो हर एक असाइनमेंट में आपको वो कॉमन गलती दिख रही है। फॉर एग्जांपल, डॉक्यूमेंटेशन की गलती, डॉक्यूमेंटेशन सही से प्रॉपर नहीं हो रखी, तो वो आइसोलेटेड केस नहीं है, वो हमारा हो गया वीकनेस दैट इज परवेसिव एंड क्रॉनिक इन नेचर, विच इज द की ऑब्जेक्टिव। एंड की ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है, टू आइडेंटिफाई आइसोलेटेड केसेस। फॉर एग्जांपल, अगर एक छोटी सी गलती दिखी, वो भी एक पर्टिकुलर केस में विच इज नॉट एट ऑल मटेरियल, तो उसको आइडेंटिफाई करना इज नॉट द की ऑब्जेक्टिव ऑफ पीयर रिव्यू। की ऑब्जेक्टिव इज टू identify the weaknesses that are pervasive and chronic in nature. All right, I hope you got it. Now the example about this example is absence of formal planning of audit represents a serious deficiency. तो इसका ऊपर का example है सिंपल सा ये वाला, that अगर आपने हर 6 केसेस में, जितने भी आपने 6 केसेस 6 सैंपल सेलेक्ट किए प्रैक्टिस यूनिट के, एंड वहां पे आपने देखा कि प्लानिंग की कमी है, मतलब फॉर्मल प्लानिंग ही नहीं हुई, which represents a serious deficiency that needs to be remedied by the practice unit. तो वो हमारा की ऑब्जेक्टिव हो गया, टू फाइंड आउट दैट वीकनेस, टू आइडेंटिफाई दैट वीकनेस। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एन इंस्टेंस ऑफ द ऑडिटर नॉट कैरिंग आउट फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फर्नीचर एंड फिक्सचर may not attract the same comment. इसमें बेसिकली ये this is the isolated case, this is the non-material चीज. So however, certain items of assets are best verified through the physical verification process and not adopting the same procedure may rightly be viewed as systemic failure. तो इन्होंने अपनी ही बात को बेसिकली दोबारा एक मटेरियल टर्म में ले गए। अगर फर्नीचर फिक्सचर मटेरियल आइटम होती तब ऑडिटर को आइडेंटिफाई करना काफी जरूरी होता। सिंपल सी बात ये बोल रखी है, मटेरियलिटी के ऊपर बोल रखा है बेसिकली, मटेरियलिटी और वीकनेस दैट इज परवेसिव एंड क्रॉनिक इन नेचर। ठीक है, तो नाउ लेट्स हेड टू द स्कोप ऑफ द पीयर रिव्यू। स्कोप में बेसिकली हमारा बोल रखा है, स्कोप का मतलब क्या होता है, दायरा। दायरा पीयर रिव्यू का कितना दायरा है, बेसिकली दायरा में हमारा स्कोप में बेसिकली क्या क्या आएगा मैं बता देता हूँ। पहली चीज एश्योरेंस सर्विस होनी चाहिए, सिर्फ एश्योरेंस सर्विस का रिव्यू हो सकता है, उसके अलावा कोई भी सर्विस का रिव्यू नहीं हो सकता। हमारे आगे इसके डेफिनेशन में, मतलब इसी में ही आगे हम पढ़ेंगे एश्योरेंस सर्विस क्या क्या नहीं होती है, इसकी बता रखी है स्टडी मटेरियल के अंदर आपके, कि मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज हो गई, रिप्रेजेंटेशन बिफोर वेरियस अथॉरिटीज हो गया, वो एश्योरेंस सर्विस नहीं होती है, तो उसका आपका पीयर रिव्यू में आपका स्कोप है ही नहीं। एक चीज ये बता रखी है। दूसरी चीज बता रखी है कि रिव्यू में क्या क्या कवर होता है, सेकंड पॉइंट इसका ये है।
और थर्ड पॉइंट हमारा है कि कितने साल तक का आप रिव्यू कर सकते हो। अगर आप रिव्यूअर हो और आप प्रैक्टिस यूनिट का आप रिव्यू करने जा रहे हो, तो आप कितने साल पुराने तक का आप उनका रिव्यू कर सकते हो। तो उसके अंदर आपका 3 साल का लिमिट दे रखा है कि आप 3 साल से पुराना ऑडिट का रिव्यू नहीं कर सकते, 3 साल से पुराने एश्योरेंस सर्विस का आप रिव्यू नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये 3 चीजें मेन है इसके अंदर। लेट्स रीड इट फ्रॉम दी पीडीएफ। The peer review process shall apply to all the assurance services. Only the assurance service. Assurance service में audit वगैरह आ गया, attestation functions वाली services आ गई। Alright, the review shall cover मतलब स्कोप में क्या क्या आएगा। कंप्लायंस विद टेक्निकल, एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, सेम चीज वही जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था। सेकंड इज अबाउट क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग, क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग चेक करना। थर्ड इज अबाउट सिस्टम एंड प्रोसीजर। तो ये पहले 3 पॉइंट्स तो बेसिकली आपके जो ऑब्जेक्टिव्स में थे सिमिलर टाइप के हो गए, बट लैंग्वेज चेंज है, तो आप इसको लैंग्वेज वाइज ही याद रखें तो बेटर रहेगा आपके लिए। ऑलराइट, 3 पॉइंट हमने पढ़ लिए। फोर्थ पॉइंट इज अबाउट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर स्टाफ। स्टाफ का ट्रेनिंग प्रोग्राम देखना, कंसर्न विद एश्योरेंस फंक्शंस ओनली। एश्योरेंस फंक्शन मतलब ये नहीं कि मतलब जो दूसरे स्टाफ्स होते हैं जो कि जिसका स्कोप में है ही नहीं, उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम को रिव्यू करना इज नॉट द फंक्शन, नॉट इन द स्कोप ऑफ हमारा पीयर रिव्यू। ऑलराइट, and the fifth point and sixth point is about the compliance with the directions issued by the council. काउंसिल की जो डायरेक्शंस इशूड होती हैं उसके ऊपर है। पहली चीज लिखी हुई है हमारी मेंबर्स के रिगार्डिंग, दूसरी चीज आर्टिकल असिस्टेंट के रिगार्डिंग लिखी हुई है। ये याद रखना। मेंबर्स के रिगार्डिंग क्या लिखा हुआ है कि फीस कितनी चार्ज कर रहे हैं, ये हमारा उसका डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये स्कोप में हमारा इंक्लूड होता है। नंबर ऑफ ऑडिट्स अंडरटेकन का देख लेना। ऑलराइट, रजिस्टर फॉर एश्योरेंस एंगेजमेंट कंडक्टेड ड्यूरिंग द ईयर का ये भी चेक कर सकता है, ये भी स्कोप के अंडर आता है। ऑलराइट, कि वो मेंटेन कर रहे हैं नहीं कर रहे। एंड आर्टिकल असिस्टेंट्स में बेसिकली ये लिखा गया है कि उनका अटेंडेंस रजिस्टर हमारा है या नहीं है। वर्क डायरीज के ऊपर हो गया, स्टाइपेंड एज पर दी रेगुलेशंस, एज पर दी काउंसिल की डायरेक्शंस पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे, एंड सच अदर रिलेटेड रिकॉर्ड्स। ऑलराइट, तो दीज आर 6 पॉइंट्स। फिर उसके बाद 3 इयर्स वाली बात बोल रखी है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। एंड उसके बाद हमें ये वाली चीज बोल रखी है, उसके बाद स्कोप के अंदर ही टेक्निकल, प्रोफेशनल और एथिकल स्टैंडर्ड्स को एक्सप्लेन कर रखा है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या क्या हमारा एश्योरेंस सर्विस में नहीं आता वो चीज लिख रखी है। स्टूडेंट्स में नोट दैट एंगेजमेंट मींस एन एंगेजमेंट इन विच practitioner expresses a conclusion designed to enhance the degree of confidence of the intended users other than the responsible party. ये ऐसी कुछ भी नहीं है। आप सिंपली ये याद रखो कि एश्योरेंस सर्विस में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता। फर्स्ट इज अबाउट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंगेजमेंट हो गए, रिप्रेजेंटेशन बिफोर वेरियस अथॉरिटीज हो गया, एंगेजमेंट टू प्रिपेयर टैक्स रिटर्न्स हो गया, जो टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करते हैं उसको, या फिर क्लाइंट्स को एडवाइस देते हैं टैक्सेशन मैटर्स पे, तो वो हमारा इसके स्कोप में इंक्लूडेड नहीं है। एंगेजमेंट फॉर द कंपाइलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपाइलेशन करना, वो भी स्कोप में नहीं है। एंगेजमेंट सोलली टू असिस्ट द क्लाइंट इन प्रिपेयरिंग, कंपाइलिंग और कोलेटिंग इंफॉर्मेशन अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब इसका क्या हुआ, फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट को अगर आप इकट्ठा पढ़ते हो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो कंपाइलेशन होता है वो तो स्कोप में नहीं है, बट उसका प्रिपेरेशन, उसका कोलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन वो हमारा स्कोप में आएगा। ऑलराइट, फोर्थ और फिफ्थ की इकट्ठे रीडिंग करने पे हम ये इन्फेरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट में बेसिकली बोल रखा है कि अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को छोड़कर उसका किसी भी और भी डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करना, कंपाइल करवाना या कोलेट करवाना, वो हमारे स्कोप के बाहर होता है। मतलब एश्योरेंस सर्विस के डेफिनेशन में कवर नहीं होता। टेस्टिफाइंग एज एन एक्सपर्ट विटनेस इज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ एश्योरेंस सर्विसेज। प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं हो सकता स्कोप में हमारे इंक्लूडेड। और एंगेजमेंट फॉर ड्यू डिलीजेंस, ये भी हमारे स्कोप के बाहर है। ऑलराइट, तो एश्योरेंस सर्विस के बारे में बता रखा है कि इसमें ऑडिट फंक्शन आता है, ऑडिट सर्विसेज आती हैं, अटेस्टेशन फंक्शंस आते हैं। ऑलराइट, तो सिंपली हमारा ये वाला स्कोप और ऑब्जेक्टिव हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। लेट्स हेड टू द एप्लीकेबिलिटी ऑफ पीयर रिव्यू। एप्लीकेबिलिटी में बेसिकली एक चार्ट बना दिया मैंने, थोड़ा टाइम लगा इसमें, बट इसमें एक चार्ट बना दिया मैंने जो कि आपको काफी हद तक मदद कर देगा। कंपैरेटिव चार्ट बना दिया है बेसिकली। तो आपके नॉर्मली स्टडी मटेरियल के अंदर पहले लेवल 1 का बता रखा है, फिर लेवल 2 का बता रखा है, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है आपको कोलेट करना ड्यूरिंग द एग्जाम्स एंड ऑल। तो इस चार्ट से आपको काफी हेल्प होगी, आई होप। तो बताना कमेंट सेक्शन में कैसा लगा ये चार्ट। ऑलराइट, सो लेट्स सी द बेसिस लेवल 1 यूनिट एंड लेवल 2 यूनिट। तो ये अमेंडेड भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले 3 लेवल हुआ करते थे, अब 2 लेवल रह गए सिर्फ, लेवल 1 लेवल 2।
फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द पीरियोडिसिटी ऑफ पीयर रिव्यू। पीरियोडिसिटी का मतलब कि अगर कोई प्रैक्टिस यूनिट लेवल 1 यूनिट में आती है, लेवल 1 यूनिट के अंदर कवर हो जाती है, देन उनका पीयर रिव्यू वंस इन 3 इयर्स होगा। मतलब 3 साल में एक बार तो एटलीस्ट पीयर रिव्यू उनका होएगा ही होएगा। एंड इफ द practice unit is covered in level 2 unit, then the periodicity is once in 4 years. All right, so periodicity cover हो गई। Second is about this public sector bank, private sector bank, foreign bank and cooperative bank। सारे के सारे banks आ गए बेसिकली, ये याद रखना। तो उनका अगर सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिट हो रहा है तो हमारा वो लेवल 1 के अंदर आ जाएगा। और अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट है या इंटरनल ऑडिट है या कॉन्करेंट ऑडिट है या सिस्टम्स ऑडिट है या टैक्स ऑडिट है या डिपार्टमेंटल रिव्यू है ऑफ द ब्रांचेस एंड द ऑफिसेस, देन वो लेवल 2 यूनिट के अंदर कवर होंगे। ऑलराइट, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात कर रखी है, फिर उसका भी सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिट के बारे में बोल रखा है। अगर सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिट में कवर होते हैं देन लेवल 1 यूनिट के अंदर वो प्रैक्टिस यूनिट कवर हो रही होगी। अगर प्रैक्टिस यूनिट जो सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिट करती है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, देन दैट प्रैक्टिस यूनिट शैल बी कवर्ड इन लेवल 1 यूनिट। ऑलराइट, और लेवल 2 में इसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रखी। नेक्स्ट, कमिंग टू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सेंट्रल और स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, एंड द क्राइटेरिया इज बेस्ड अपॉन द PUSE मतलब पेड अप शेयर कैपिटल एंड द टर्नओवर। तो अगर सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिट के बारे में बोल रखा है देन वंस इन 3 इयर्स लेवल 1 यूनिट में कवर हो जाएगा। और इसमें स्टैट्यूटरी इंटरनल की सेम बात ऊपर वाली, जितने भी हमारे डिपार्टमेंटल रिव्यू हो गया, टैक्स ऑडिट हो गया, सिस्टम्स ऑडिट हो गया, कॉन्करेंट ऑडिट हो गया, सॉरी, इंटरनल ऑडिट हो गया एंड स्टैट्यूटरी ऑडिट हो गया, देन वो लेवल 2 यूनिट के अंदर कवर हो जाएगा। नेक्स्ट इज अबाउट सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इसमें भी सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिट के बारे में बोल रखा है और इसमें नॉट मेंशन्ड, इसमें भी सिंपली ये बोल रखा है। तो यहाँ पे हेंस अदर देन सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिट सिंपली, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बोल दिया, तो कहाँ कहाँ अभी तक सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिट आया है? एक तो बैंक्स के ऊपर आया है, एक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर आया है, एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के ऊपर आया है, एक सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ऊपर आया है। तो इन सब के ऊपर सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिट के अंदर आएगा तो लेवल 1 यूनिट कहलाएगा। लेवल 1 यूनिट के अंदर आ जाएगी वो प्रैक्टिस यूनिट, एंड लेवल 2 यूनिट के अंदर इन सब के लिए स्टैट्यूटरी ऑडिट हो गया, इंटरनल ऑडिट हो गया, कॉन्करेंट ऑडिट हो गया, सिस्टम ऑडिट हो गया, टैक्स ऑडिट हो गया, डिपार्टमेंटल रिव्यू हो गया, एक्सेप्ट फॉर द पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसके बारे में बात नहीं कर रखी, और सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी का उसके बारे में बात नहीं कर रखी। देन लेवल 2 के बाकी जितने भी अभी तक हमने पढ़े हैं उन सब में बाकी ऑडिट लेवल 2 में, और सिर्फ सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिट के बारे में लेवल 1 में बात कर रखी है। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू द इंश्योरेंस कंपनीज एंड रीजनल रूरल बैंक्स। उसमें भी सेम बात बोल रखी है सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिट के बारे में, और उसमें भी स्टैट्यूटरी, इंटरनल, कॉन्करेंट वगैरह जितने भी हमारे अभी तक पढ़े हैं। रीजनल रूरल बैंक हमारी ये अमेंडमेंट है, और इंश्योरेंस कंपनीज। ऑलराइट, तो ये सेम चीज है ऊपर जैसे। अब आते हैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजों में जो कि हमारे और ज्यादा, जो बिल्कुल न्यू है हमारे लिए। मतलब तो अगर कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी है या फिर म्यूचुअल फंड्स है, उसका स्टैट्यूटरी ऑडिट करते हैं। सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात नहीं कर रहा, सिर्फ स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात कर रहे हैं हम। ऑलराइट, तो स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हैं ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनी या म्यूचुअल फंड्स का, या फिर एंटरप्राइजेस जिसकी लिस्टेड है, जो लिस्टेड है, जिनकी इक्विटी या फिर डेट सिक्योरिटीज आर लिस्टेड इन इंडिया और इन अब्रॉड। ऑलराइट, तो उनकी बात भी कर रहे हैं। अगर उनका स्टैट्यूटरी ऑडिट करते हो, मतलब लिस्टेड कंपनी का अगर आप स्टैट ऑडिट कर रहे हो, देन यू आर कवर्ड इन लेवल 1 यूनिट, लेवल 1 एंटिटी, देन दैट प्रैक्टिस यूनिट विल बी कवर्ड इन लेवल 1 यूनिट। ऑलराइट, और any body corporate including trusts which are covered under public interest entities। public interest के लिए कोई ट्रस्ट बना है, देन उसका स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हो तो वो लेवल 1 के अंदर इंक्लूड होएगा। और इसके अंदर कुछ भी नहीं बोल रखा लेवल 2 के बारे में। स्टैट्यूटरी ऑडिट के अलावा कोई भी ऑडिट मतलब कवर नहीं किया गया है इसके अंदर, ठीक है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी, म्यूचुअल फंड्स, एंड जिसकी लिस्टेड कंपनी होगी, लिस्टेड इन द सेंस इंडिया में भी हो सकती है, अब्रॉड भी हो सकती है, इक्विटी भी लिस्ट हो सकती है, डेट भी लिस्ट हो सकता है। और तीसरा और चौथा पॉइंट हमारा जो कि ट्रस्ट वगैरह है विच आर कवर्ड अंडर पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज। ऑलराइट, इन सबका स्टैट्यूटरी ऑडिट अगर करता है कोई प्रैक्टिस यूनिट, देन दैट प्रैक्टिस यूनिट विल बी कवर्ड इन लेवल 1 एंटिटी। ऑलराइट, फिर एनबीएफसी में सिंपली ये दोनों में सेम बात बोल रखी है, लेवल 1 में भी लेवल 2 में भी, दैट एज मे बी डिफाइंड बाय द बोर्ड। तो इसका कोई क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा क्योंकि डिफाइंड बाय बोर्ड में रूल्स में बताना चाहिए, तो वो हमारे स्टडी मटेरियल के अंदर कवर नहीं था। ऑलराइट, अब आता है स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात।
अगर नेटवर्थ किसी कंपनी की, कंपनी अदर देन लिस्टेड कंपनी याद रखना, क्योंकि लिस्टेड कंपनी अगर आएगी तो सीधा उसका स्टैट्यूटरी ऑडिट अगर लिस्टेड एंटिटी का करोगे तो वो लेवल 1 के अंदर कवर हो जाएगी, याद रखना ये वाली बात। और अगर अदर देन लिस्टेड कंपनी है और उसकी नेटवर्थ 250 करोड़ से ऊपर है, मोर देन लिखा हुआ है, मोर देन 250 करोड़ है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू, एंड एट एनी टाइम 250 करोड़ से ऊपर नेटवर्थ जाती है एक कंपनी की, देन उसका स्टैट्यूटरी ऑडिट करना, अगर कोई प्रैक्टिस यूनिट एंटिटी प्रैक्टिस यूनिट अगर करती है स्टैट्यूटरी ऑडिट, देन 250 करोड़ से ऊपर का उसका नेटवर्थ है अगर, तो लेवल 1 में कवर हो जाएगी। और लेवल 2 के अंदर कौन कौन सी कवर होंगी? जिसका नेटवर्थ 5 करोड़ से ऊपर है और 250 करोड़ से नीचे है, या फिर जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है। याद रखना टर्नओवर की बात कर रही है यहाँ पे, एनुअल टर्नओवर की बात कर रखी है, ठीक है। If the annual turnover is more than 50 crore or the net worth is more than 5 crore but less than 250 crore, then then the practice unit which is doing statutory audit of that company, जिसका लिमिट बताया मैंने, that practice unit will be covered in level 2 entity. All right. और अगर 250 करोड़ से ऊपर का नेटवर्थ है एक कंपनी का, देन वो लेवल 1 में आ जाएगा। और ये वाली बात याद रखना कि वो लेवल लिस्टेड कंपनी की बात नहीं कर रहे। लिस्टेड कंपनी ऑलवेज, अगर कोई प्रैक्टिस यूनिट जिसका ऑडिट करती है लिस्टेड कंपनी का, तो वो लेवल 1 में ही आएगी, ठीक है। अब आते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात अगेन, विच हैव रेज्ड फंड फ्रॉम पब्लिक और बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसने पब्लिक डिपॉजिट ले रखे हो या फिर बैंक से फंड रिसीव कर रखे हो या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फंड्स रेज कर रखे हो मोर देन 50 करोड़ से, और या फिर उसने डोनेशन रेज कर रखी हो मोर देन 50 करोड़ की, या फिर उसने सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू फंड्स रेज कर रखे हो मोर देन 50 करोड़ की। तो ये 3 पॉइंट मैंने इकट्ठे लिख दिए यहाँ पे। 3 पॉइंट कौन कौन से हैं जो कि 50 करोड़ की लिमिट को बता रहे हैं? एक तो फंड रेज करना फ्रॉम पब्लिक और बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से, या फिर किसी डोनेशन के थ्रू। 50 करोड़ से ऊपर का अगर कंपनी फंड रेज करती है और उस कंपनी का प्रैक्टिस यूनिट, कोई भी प्रैक्टिस यूनिट अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रही है, तो वो प्रैक्टिस यूनिट लेवल 1 एंटिटी कहलाएगी, ये याद रखना। अब 50 करोड़ अगर टर्नओवर की बात करते हैं, टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है कंपनी का, उसका ऑडिट करते हैं, तो उसका पॉइंट इसमें कंफ्यूज मत होना, उसका ऊपर वाला यहाँ पे कवर हो जाएगा। इफ मोर देन 50 करोड़ टर्नओवर होता है किसी कंपनी का, उसका स्टैट ऑडिट करते हैं, तो वो लेवल 2 एंटिटी में कहलाएगी, ये याद रखना। और यहाँ पे बोल रखा है कि रेज्ड फंड फ्रॉम पब्लिक और बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ मोर देन 25 करोड़ बट लेस देन 50 करोड़। इसमें जो बस आप इसका ये वाला पहला पॉइंट और इसका पहला पॉइंट को आप कंपैरेटिवली लर्न कर सकते हो कि अगर 50 करोड़ से ऊपर का है पब्लिक डिपॉजिट या फिर बैंक से हमने फंड रेज कर रखे हैं या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रेज कर रखे हैं, इफ मोर देन 50 करोड़ तो प्रैक्टिस यूनिट उसका ऑडिट करेगी, तो लेवल 1। और अगर 25 करोड़ से ऊपर है बट 50 करोड़ से कम है, देन वो लेवल 2 में, वो प्रैक्टिस यूनिट लेवल 2 में कहलाएगी, ठीक है। और इसके बारे में बात नहीं कर रखी, दैट डोनेशंस वगैरह के बारे में और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में कोई बात नहीं कर रखी, ठीक है। नेक्स्ट इज अबाउट UDINs generated by the practice unit more than the specified number determined by the board from time to time। अगर बोर्ड ने कुछ पर्टिकुलर नंबर आधार कार्ड के लिए मान लो इसके लिए कि डिटरमाइन कर रखा है, देन अगर उससे ज्यादा बार कर लेती है, तो ये इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं, तो अगर उससे ज्यादा बार कोई भी प्रैक्टिस यूनिट उसको जनरेट कर लेती है, देन वो कंपनी, वो प्रैक्टिस यूनिट लेवल 2 एंटिटी कहलाएगी, ठीक है। और ऑल अदर देन मेंशन्ड अबव, ये तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है मुझे, दैट कितने भी मतलब ऊपर जो भी मेंशन्ड किया गया है, ऊपर जितने भी पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं लेवल 2 में, अगर उसमें कोई भी प्रैक्टिस यूनिट जितनी भी है वो कवर नहीं होती, तो वो लेवल 2 में मानी जाएंगी। तो ये काफी अच्छा पॉइंट है, ठीक है। इसमें एक चीज मिसिंग है विच आई विल शो यू हियर। इफ लेवल 1 के अंदर स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ पेरेंट, सब्सिडियरी, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर ऑफ द अबव एंटिटीज, तो लेवल 1 में जितने भी हमने पॉइंट्स पढ़े हैं, अगर उनका उसके पेरेंट का या फिर एसोसिएट का या जॉइंट वेंचर का या फिर सब्सिडियरी का स्टैट्यूटरी ऑडिट करती है कोई प्रैक्टिस यूनिट, देन दैट प्रैक्टिस यूनिट विल आल्सो बी कवर्ड इन लेवल 1 एंटिटी। सो यस, आपकी एप्लीकेबिलिटी यहाँ पे फिनिश हो जानी चाहिए,
बस छोटे छोटे पॉइंट्स रह गए हैं, वो एक बार आप पढ़ लेते हैं. स्पेशल केस रिव्यू. द बोर्ड बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय द सेक्रेटरी ICI, मतलब कोई भी कुछ इंफॉर्मेशन रिसीव करता है बोर्ड, देन दैट कैन ऑर्डर मे कंडक्ट अ स्पेशल रिव्यू ऑफ द प्रैक्टिस यूनिट. मतलब उसके आगे उसके लिए स्पेशल रिव्यू करा जा सकता है अगर कुछ भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलती है प्रैक्टिस यूनिट के द्वारा के लिए. ऑलराइट, मतलब डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट कर सकता है या फिर एनी अदर रेगुलेटर भी कर सकता है. ठीक है. नेक्स्ट इज अबाउट एनी प्रैक्टिस यूनिट नॉट सेलेक्टेड फॉर पीयर रिव्यू में सुओ मोटो अप्लाई टू द बोर्ड फॉर द कंडक्ट ऑफ पीयर रिव्यू. मतलब कोई भी प्रैक्टिस यूनिट खुद भी जाके बोल सकती है सुओ मोटो कि बोर्ड को, बोर्ड यहाँ पे पीयर रिव्यू बोर्ड होता है बेसिकली, तो उनको बोल सकते हैं कि हमारा भी पीयर रिव्यू कंडक्ट करवाओ. द बोर्ड शैल एक्ट अपॉन द सेम विद इन 30 days. तो 30 days के अंदर अंदर बोर्ड हमारा एक्ट उसके ऊपर एक्शन लेगा. एंड ऑडिटिंग, मतलब क्लाइंट जो होता है वो भी रिक्वेस्ट कर सकता है बोर्ड को फॉर इट्स ऑडिटर टू बी पीयर रिव्यूड. मतलब जो फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, वो कंपनी भी जा सकती है पीयर रिव्यू के पास, पीयर रिव्यू बोर्ड के पास, दैट हमारे स्टैट्यूटरी ऑडिटर का आप पीयर रिव्यू करवाइए. तो उसके ऊपर भी 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड शैल एक्ट. ऑलराइट. एंड द बोर्ड में with the approval of the council modify any of the above criteria. ऊपर का क्राइटेरिया को चेंज भी कर सकता है बोर्ड after getting approval from the council. I hope you got this applicability part as well. Let's head to the next topic, which is peer review board. Peer review board में ये हेडिंग दे रखी है peer review board की, बट इसमें 3-4 चीजों की बातें कर रखी हैं. पहली चीज की बात कर रखी है about the peer review board only, which says about the constitution, which says about the meetings, and which says about the casual vacancies and all. तो उन चीजों के बारे में बात कर रखी है. एंड देन उसके बाद रिव्यूअर के बारे में बात कर रखी है. रिव्यूअर की एलिजिबिलिटी हो गई, क्वालिफाइड असिस्टेंट्स हो गए, कॉन्फिडेंशियलिटी हो गई. तो इस 5th टॉपिक को, इसका नाम आई गेस पीयर रिव्यू बोर्ड नहीं होना चाहिए था. इसमें और भी कॉम्प्रिहेंसिवली बता सकते थे या फिर उसको डिवाइड कर सकते थे 2 टॉपिक्स में. तो पीयर रिव्यू बोर्ड ही टॉपिक का नाम दे रखा है स्टडी मटेरियल के अंदर भी, तो हम उसी को ही बेसिकली लेके चल रहे हैं. तो यस, लेट्स स्टार्ट विद द पीयर रिव्यू बोर्ड. उसमें पहली चीज बता रखी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में. कॉन्स्टिट्यूशन में ये बता रखा है कि एटलीस्ट मैक्सिमम 12 मेंबर्स होने चाहिए. Maximum 12 members can be appointed in the peer review board and at least 50% of them are from the council. जो काउंसिल होता है, CCM होते हैं हमारे, जो ट्विटर पे आप देख ही रहे होंगे आजकल काफी सारे कि CCMs वगैरह जितने भी होते हैं वो काउंसिल मेंबर्स होते हैं. जो उनके वो 50% ऑफ दी बोर्ड है, पीयर रिव्यू बोर्ड है, वो काउंसिल मेंबर्स से कॉन्स्टिट्यूट होएगा. तो ये बात यहाँ लिखी हुई है. It consists of maximum of 12 members and not less than 50% shall be amongst the members of the council. तो काउंसिल के 50% मतलब एटलीस्ट 6 मेंबर्स, अगर 12 मेंबर हमारे हैं पीयर रिव्यू बोर्ड के अंदर, तो एटलीस्ट 6 मेंबर जो होते हैं वो काउंसिल के होने चाहिए. देन इट टॉक्स अबाउट द नॉमिनेशन. द काउंसिल में नॉमिनेट मेंबर्स टू द बोर्ड फ्रॉम आउटसाइड बॉडीज एज वेल. मतलब बाहर से भी, मतलब काउंसिल जो है वो मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है फ्रॉम आउटसाइड बॉडीज एज वेल. मतलब उसके अंदर ये भी बता रखा है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं विच आर ऑफ हाई इंटेग्रिटी एंड रेपुटेशन बट नॉट लिमिटेड टू, मतलब सिर्फ अगर रेगुलेटरी अथॉरिटीज में से हो गया, या बैंकर्स हो गए, या फिर अकेडमिशियंस हो गए, या इकोनॉमिस्ट हो गए, या लीगल प्रोफेशनल्स हो गए, या बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स हो गए, सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं रहने की जरूरत काउंसिल को. वो कहीं और से भी जिनका हाई इंटेग्रिटी और रेपुटेशन है वो भी मेंबर बन सकते हैं काउंसिल की रिकमेंडेशन पे. ऑलराइट. फिर ये बताते हैं कि एक चेयरमैन होना चाहिए और एक वाइस चेयरमैन होना चाहिए. इसके बारे में बात कर रखी है. और टर्म के बारे में बात कर रखी है. टर्म ऑफ 2/3 मेंबर्स. 2/3 मेंबर्स अगर 12 मेंबर्स हैं टोटल, देन 2/3 विल बी 8 मेंबर्स. तो 8 मेंबर्स का टर्म जो होगा वो या तो 3 साल होगा और एंड ऑफ द टर्म ऑफ द मेंबर इन द काउंसिल विच एवर इज अर्लियर. मतलब फॉर एग्जांपल एक CCM की जो टर्म है वो 1 साल में खत्म होने वाली है और वो CCM अभी अभी पीयर रिव्यू बोर्ड का मेंबर बना है. तो उसका जो टर्म होएगा, अगर वो 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर में लिमिट में आ रहा है अगर वो, तो देन हिज टर्म शैल बी ईदर 3 years और एंड ऑफ द टर्म मतलब 1 year. एंड ऑफ द टर्म ऑफ द मेंबर इन द काउंसिल मतलब 1 year जो मैंने अभी बताया, और 1 year विच एवर इज अर्लियर. तो सिर्फ 1 साल का टर्म रह जाएगा उस CCM का, उस काउंसिल मेंबर का, विच इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ पीयर रिव्यू बोर्ड. ऑलराइट. और such other period as will be prescribed by the
council from time to time. तो कोई prescribed हमें study material के अंदर कुछ given नहीं है उसके regarding. Then it talks about the chairman and the vice chairman of the board may be rotated every year. मतलब हर साल वो rotation हो सकती है chairman और vice chairman की. Then it talks about the casual vacancies. Casual vacancies shall be filled by the council. All right. Casual vacancy होती है किसी भी reason से resignation दे देता है अगर या फिर डेथ हो जाती है किसी मेंबर की, then that shall be filled by the council. All right. इसमें ये बता रखा है कि एक डिसिप्लिनरी कमेटी का मेंबर या फिर डिसिप्लिनरी बोर्ड का मेंबर वो पीयर रिव्यू बोर्ड का मेंबर नहीं बन सकता. तो ये दोनों सीधा ये वाला पॉइंट बोलते हैं that a member of the disciplinary committee or the disciplinary board of the Institute of Chartered Accountants of India shall not be a member of the peer review board. All right. Then it talks about the meeting requirements कि कितना टाइम कितना साल में कितनी बार मिलना चाहिए, कोरम क्या क्या होना चाहिए, इस बारे में बात कर रखी है. That no business shall be transacted at any meeting of the board unless there are present at least 1/3 member of the board. At least 1/3 members मतलब अगर 12 members हैं तो at least 4 members का present होना जरूरी है, but not less than 3 members. तो 3 members से कम नहीं हो सकते. मतलब for example अगर 6 members हैं peer review board के अंदर 6 members हैं, then 2/3 कितना हुआ, 1/3 कितना हुआ उसका 2 members. But 2 members नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है सीधा सीधा बट नॉट लेस देन 3 members. 3 members होने तो जरूरी है ही है. और 2/3 मतलब बेसिकली अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में बात करनी है तो 1/3 और 3 whichever is higher shall be the quorum of the board. All right, including the chairman को include करके. ठीक है. In the absence of the quorum within अगर quorum नहीं है तो आधे घंटे के अंदर अंदर within half an hour of the time fixed for the meeting shall stand adjourned to a date, time and place fixed by the chairman or in the this. तो मतलब अगर quorum present नहीं होता then simply आधे घंटे के अंदर अंदर मीटिंग स्टार्ट होने के आधे घंटे के अंदर अंदर ये डिसाइड कर लो कि कब होएगी नेक्स्ट मीटिंग. ऑलराइट. डेट डिसाइड कर लो, टाइम डिसाइड कर लो, प्लेस डिसाइड कर लो. चेयरमैन और वाइस चेयरमैन डिसाइड करेंगे ये. एंड देन द बोर्ड शैल मीट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांजैक्शन. However, at least one meeting every 3 months. तो हर 3 महीने में एक मीटिंग होनी जरूरी है. बट साथ ही साथ अगर कोई ट्रांजैक्शन होती है तब मीटिंग कर सकते हैं पीयर रिव्यू बोर्ड. Then it talks about reporting that the board shall submit a report to the council prior to the date of every meeting of the council. हर मीटिंग से पहले एक रिपोर्ट सबमिट करनी जरूरी होती है by the board to the council. Now coming to the eligibility to be a reviewer. Eligibility to be a reviewer is separate from the above discussion that we had about peer review board. तो वो बस 5th टॉपिक peer review board लिख के छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन उसके अंदर और भी चीजें कवर हो रही है जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. तो एलिजिबिलिटी टू बी अ रिव्यूअर के बारे में बात कर लेते हैं एक बार. इसमें बेसिकली ये बता रखा है दैट अ पीयर रिव्यूअर की एलिजिबिलिटी मतलब इसमें 3-4 चीजें की बात कर रखी है. पहली चीज तो कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या क्या मतलब क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए. फिर डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर रखी है, कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस के बारे में ये सारी चीजें बात कर रखी है इस पॉइंट में. 4 पॉइंट से बेसिकली फर्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं एक बार. फर्स्ट पॉइंट में बोला है कि पीयर रिव्यूअर शैल बी अ मेंबर इन प्रैक्टिस. जो पीयर रिव्यूअर होते हैं वो प्रैक्टिसिंग मेंबर होना चाहिए, सर्विस में नहीं होना चाहिए. सिर्फ प्रैक्टिसिंग मेंबर ही पीयर रिव्यूअर बन सकता है. फर्स्ट थिंग ये याद रखना. और एक्सपीरियंस के बारे में तो एटलीस्ट 10 years ऑफ एक्सपीरियंस फॉर लेवल 1 एंटिटीज एंड 7 years ऑफ एक्सपीरियंस फॉर लेवल 2 एंटिटीज. जो प्रैक्टिसिंग मेंबर है उसको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए. अपनी जितनी भी उसने प्रैक्टिस करी है उसको 10 साल का एक्सपीरियंस कम से कम होना चाहिए फॉर रिव्यूइंग लेवल 1 एंटिटीज. लेवल 1 एंटिटी क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल अ प्रैक्टिसिंग यूनिट विच is a central statutory auditor of insurance company. That practicing unit is a level 1 entity. तो उस level 1 entity का अगर किसी रिव्यूअर को peer reviewer बनना है then he should have the experience of at least 10 years being member in practice. All right. और level 2 के लिए 7 years का experience चाहिए. Then it talks about in case a member has moved from industry to practice. ये नया पॉइंट है कि अगर कोई मेंबर था जो पहले जॉब में था, इंडस्ट्री में था, then he switched to practice, then he should have at least 15 years of experience in industry and at least 5 years experience in practice for level 1 entity. लेवल 1 एंटिटी के लिए मतलब 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंडस्ट्री में और 5 साल का प्रैक्टिस में, और एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 10 years इन इंडस्ट्री एंड 3 years इन प्रैक्टिस फॉर लेवल 2 एंटिटीज. लेवल 2 एंटिटीज के लिए
3 इयर्स का एटलीस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए मेंबर एज अ प्रैक्टिसिंग मेंबर, और 10 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो पहले में क्या था 15+5 और दूसरे में 10+3। ऑलराइट, तो ये अच्छा पॉइंट है। एमसीक्यू इसमें काफी बहुत अच्छे बन सकते हैं एमसीक्यू, मतलब काफी घुमा घुमा के तो नहीं बनाए पूछेंगे आई गेस। तो 2 मार्क्स का तो मान के चलो इससे एमसीक्यू आ ही सकता है। ठीक है। शुड हैव अंडरगोन द requisite ट्रेनिंग एंड requisite टेस्ट फॉर peer रिव्यू, ये पहले सिंपल पॉइंट है, ये बोल दो। शुड हैव कंडक्टेड ऑडिट ऑफ लेवल 1 एंटिटीज, ऑडिट करना चाहिए लेवल 1 एंटिटीज का फॉर एटलीस्ट 7 years, और गॉट हिज एंटिटी audited for at least 7 years, which should be a level 1 entity to be eligible for conducting peer review of level 1 entities। तो level 1 entity का auditor बनने के लिए, level 1 entity का peer reviewer बनने के लिए, आई एम सॉरी, उसके लिए तो एटलीस्ट लेवल 1 एंटिटीज का ऑडिट करना हो चाहिए पहले उस मेंबर को, साथ ही साथ ऑडिट भी करना चाहिए एटलीस्ट फॉर 7 years। ऑलराइट, और गेट हिज एंटिटी ऑडिटेड फॉर एटलीस्ट 7 years, which should be a level 1 entity। सेकंड पॉइंट हमारा है अ मेंबर ऑन बीइंग अपॉइंटेड एज अ रिव्यूअर शैल बी रिक्वायर्ड टू, डिक्लेरेशन के बारे में बता रखा है कि एक डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। ऑलराइट, वो अनेक्स करना चाहिए एज एन अनेक्शर टू दिस स्टेटमेंट, एंड एक फर्निश करना चाहिए अ डिक्लेरेशन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द बोर्ड। तो कुछ प्रिस्क्राइब्ड है नहीं। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी तो मेन है ही है। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज अबाउट अ मेंबर शैल नॉट बी एलिजिबल, एलिजिबल कब नहीं होगा, या तो उसके अगेंस्ट कोई पेंडिंग ये चल रही है, कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन चल रहा है पेंडिंग अगेंस्ट हिम, तब नहीं बन सकता वो रिव्यूअर। देन सेकंड पॉइंट इज अबाउट ही हैज बीन फाउंड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट के बारे में बात कर रखी है। कॉन्विक्टेड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट के बारे में बात कर रखी है, इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, ऑफेंस हमारा ये था, एंड पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। एंड फोर्थ पॉइंट वाज अबाउट ही और हिज पार्टनर्स और पर्सोनल हैज एनी ऑब्लिगेशन और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन द प्रैक्टिसिंग यूनिट। मतलब किसी भी प्रैक्टिसिंग यूनिट में ऑलरेडी आपका कोई पार्टनर है, वो एम्प्लॉय है वहाँ का, या फिर वो जो आपका पार्टनर है वो वहाँ का पार्टनर भी है उस प्रैक्टिसिंग यूनिट का, देन यू कांट कंडक्ट एंड यू कांट बी अ रिव्यूअर ऑफ दैट प्रैक्टिसिंग यूनिट। ठीक है, तो ये डिस्क्वालिफिकेशन बता दी इन्होंने। एंड फोर्थ पॉइंट इज अबाउट शैल नॉट एक्सेप्ट प्रोफेशनल असाइनमेंट फ्रॉम द प्रैक्टिसिंग यूनिट। मतलब इफ यू आर अ रिव्यूअर ऑफ अ प्रैक्टिसिंग यूनिट, देन 2 years का कूलिंग पीरियड होगा बेसिकली। 2 years तक आप कोई भी प्रोफेशनल असाइनमेंट नहीं ले सकते फ्रॉम दैट प्रैक्टिसिंग यूनिट। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ असाइनमेंट। नाउ इट टॉक्स अबाउट क्वालिफाइड असिस्टेंट। क्वालिफाइड असिस्टेंट बेसिकली पीयर रिव्यूअर का एक क्वालिफाइड असिस्टेंट रख सकता है वो साथ में टू कंडक्ट द रिव्यू। इसमें भी कुछ कुछ बातें कर रखी है। फॉर एग्जांपल इसको भी एक कॉन्फिडेंशियलिटी का देना पड़ेगा, लेटर ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी देना पड़ेगा, डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इसको भी देना पड़ेगा। एटलीस्ट मैक्सिमम 1 क्वालिफाइड असिस्टेंट अपॉइंट कर सकते हैं, ये वाली बात कर रखी है। तो लेट्स स्टडी फ्रॉम दिस। The reviewer may take help of the qualified assistant who shall also be a chartered accountant। और only one assistant के बारे में बात कर रखी है। In this context, the board decided to clarify that a reviewer is permitted to take the assistance of only one assistant who shall be chartered accountant। chartered accountant होना जरूरी है उसका, and who does not attract any of the disqualification prescribed under section number 8 और section number 21 of the Chartered Accountants Act 1949। अपने प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर पढ़ा होगा, चार्टेड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 में कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस दे रखी है, तो उस डिस्क्वालिफिकेशन को अट्रैक्ट नहीं करना चाहिए उस क्वालिफाइड असिस्टेंट को। ऑलराइट, and the name of the qualified assistant which the reviewer would like to assist him shall be identified and intimated to the board as well as the practicing unit। मतलब बोर्ड को भी बताना पड़ेगा पीयर रिव्यूअर को, एंड साथ ही साथ प्रैक्टिसिंग यूनिट को भी बताना पड़ेगा बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ पीयर रिव्यू कि हमने एक क्वालिफाइड असिस्टेंट को अपॉइंट किया है। तो इसको भी डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में बात कर रखी है, बतानी देनी पड़ेगी साथ ही साथ। ही शैल हैव नो डायरेक्ट इंटरफेस, मतलब क्वालिफाइड असिस्टेंट ना ही पीयर रिव्यू बोर्ड से डायरेक्टली बात कर सकता है, ना ही प्रैक्टिसिंग यूनिट से डायरेक्टली बात कर सकता है। ठीक है, ये याद रखना, इधर विद द प्रैक्टिसिंग यूनिट और विद द बोर्ड। Further, the person chosen for assessing the review shall be from the firm of the reviewer as partner or paid assistant as per the records of ICI। मतलब जो क्वालिफाइड असिस्टेंट रिव्यूअर अपॉइंट करेगा वो या तो पार्टनर होना चाहिए उसका, या फिर पेड असिस्टेंट होना चाहिए, और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट तो होना ही चाहिए, जो ऊपर हमने ऑलरेडी लिख लिया है यहाँ पे, चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए वो, और मैक्सिमम 1। ठीक है, अब कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी शैल बी मेंटेन्ड बाय ऑल दोज इंडिविजुअल्स इन द पीयर रिव्यू प्रोसेस
नेमली रिव्यूअर्स हो गए, मेंबर्स ऑफ द बोर्ड हो गए, क्वालिफाइड असिस्टेंट हो गए या प्रैक्टिस यूनिट हो गया, तो सब के सब कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेंगे. ऑल पर्सन्स गवर्न्ड बाय द सीक्रेसी प्रोविजंस शैल at all times preserve and aid in preserving secrecy with regard to any matter arising in the performance or in assisting in the performance of any function directly or indirectly. Basically ये ज्यादा important है नहीं, तो इसको रीड कर लेना, that's it. ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर. उस इसमें ये याद रखना कि नॉन कंप्लायंस विद द सीक्रेसी प्रोविजंस इन द अबव क्लॉज shall amount to professional misconduct as defined in section number 22 of the CA Act 1949. Then let's head to the approach of the reviewer. Approach में basically ये बता रखा है that a reviewer shall follow these 5-step model. 5-step model basically 5-step approach दे रखी है. basically पहली चीज बता रखी है about the engagement letter कि उसको अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए एंगेजमेंट लेटर की, और बीच में इन्होंने ये बोल रखा है कि कौन कौन से प्रोसीजर अप्लाई करने चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटैंटिव एंड कंप्लायंस प्रोसीजर के बारे में बोल रखा है. बीच में एक दो चीजें और बोल रखी है. फॉर एग्जांपल रिव्यूअर को डॉक्यूमेंट करना चाहिए, इवैल्यूएट करना चाहिए रिकॉर्ड्स को. देन दे टॉक्ड अबाउट द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एंड देन दे टॉक्ड अबाउट द नंबर ऑफ assurance engagement that a peer reviewer shall select, that will depend upon the judgment of the reviewer. All right, तो एक बार रीड कर लेते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे ये. तो step wise approach which may be adopted by the reviewer is discussed in the following paragraphs. So here first point is the reviewer should gain an understanding of the engagement letter. Engagement letter की understanding क्यों लेगा? To determine the scope of the assurance services provided by the practicing unit. Since an assurance engagement, or for that matter any other kind of engagement, should begin with an engagement letter. Engagement letter is an important document as it defines the nature and scope of the assurance engagement. Practicing units responsibilities with regard to the engagement. The understanding would help him in planning the review of the documentation. So understanding will help him in planning the review of the documentation. The documentation में क्या क्या होना जरूरी है. The reviewer should focus the review primarily on the key engagement matters. The reviewer shall also determine the materiality of the matter while planning the review. तो ये सिंपल सा पॉइंट था फर्स्ट वाला. सेकंड पॉइंट बेसिकली ये बोलता है द नंबर ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट टू बी सिलेक्टेड रिक्वायर्स द एक्सरसाइज ऑफ द जजमेंट. एंड साथ ही साथ क्वेश्चनेयर, मतलब जो इवैल्यूएशन ऑफ रिप्लाईज से भी पता लग सकता है कि मतलब जजमेंट कैसे एक्सरसाइज करेगा. फर्स्ट थिंग इवैल्यूएशन ऑफ द रिप्लाईज मिलते हैं जब स्टार्टिंग, जो अगले टॉपिक में हम बेसिकली प्रोसेस समझेंगे, प्रोसेस ऑफ द पीयर रिव्यू. पीयर रिव्यू प्रोसेस के अंदर सबसे पहले क्या करता है रिव्यूअर, वो सेंड करता है क्वेश्चनेयर को. क्वेश्चनेयर सेंड करता है तो क्वेश्चनेयर का जो रिप्लाई आता है उसके रिप्लाई को आधार में रखते हुए वो अपनी जजमेंट एक्सरसाइज करेगा रिव्यूअर, दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट आर टू बी सिलेक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ रिव्यू. तो सिंपल सी ये वाली बात कर रखी है. देन साइज ऑफ द प्रैक्टिसिंग यूनिट हो गया, इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा. Then the objective is to obtain a reasonable cross section of the practicing unit's client, although greater weight may be given to the larger clients. All right. C point is about the practicing unit may have policies and procedures for accepting a particular engagement. जो practicing unit होती है उनका कोई policies और procedures होते हैं. Before accepting a particular engagement, they might have policies and procedures in place. And if they do, then a reviewer shall have to review that as well, whether they are in place and whether they are documented as well. ठीक है, तो ये सी पॉइंट था. डी पॉइंट पे बेसिकली ये बोल रखा है कि दैट रिव्यूअर शैल फॉलो अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्लायंस प्रोसीजर्स एंड सब्सटैंटिव प्रोसीजर थ्रू आउट द पीयर रिव्यू प्रोसेस. तो इसमें ये बोल रखा है कि वो क्या क्या प्रोसीजर्स अप्लाई करने पड़ेंगे बाय द पीयर रिव्यूअर. वो कंप्लायंस प्रोसीजर भी अप्लाई कर सकते हैं, वो सब्सटैंटिव प्रोसीजर भी अप्लाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस. तो इसमें सिंपल सी वाली बात बोल रखी है. इन कैरिंग आउट द कंप्लायंस टेस्ट द रिव्यूअर may evaluate whether the policies and procedures of the practicing units are sufficient to ensure compliance of technical standards. इसको आप बेसिकली अपने दिमाग में ये याद रख लो कि compliance procedure टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स हो गया और substantive procedure टेस्ट ऑफ डिटेल्स हो गया. तो वो चीज अगर आपको याद है तो उसका आप रिलेट कर पाओगे सिंपली. इसमें बोल रखा है that in carrying out the compliance test, that is test of controls, तो ये सीधा ये बोल रहे हैं कि whether the policies and procedures of the practicing unit are sufficient to ensure compliance of technical standards. अगर उनके policies and procedures strong होंगे, then it is highly likable that the practicing unit is
बेसिकली ऑपरेटिंग इन अ प्रॉपर मैनर एंड डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो जो हमने टेस्ट करनी है वो सारा परफेक्ट होगा अगर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर स्ट्रांग होंगे। तो सबसे पहले हम कैरी आउट करेंगे compliance test that the procedure policies and procedures whether they are in place, if they are in place whether they are being operated nicely, तो वो चीज आती है उसके अंदर। देन आता है substantive test। substantive test के अंदर बेसिकली ये बोल रखा है that the reviewer should evaluate whether the practicing units working papers relating to client adequately document the findings and conclusions। तो इसके अंदर ये एक इंडिविजुअल में चले गए, मतलब इंडिविजुअल सिनेरियो में चले गए। पहले था कि मतलब ओवरऑल सिनेरियो, दूसरे में आया इंडिविजुअल, मतलब एक एक करके डिटेल्स में जाना, डिटेल्स में चेक करना, दैट इज सब्सटैंटिव प्रोसीजर। ठीक है। नेक्स्ट, फाइनली द रिव्यूअर व्हाइल इवैल्यूएटिंग रिकॉर्ड्स may consider the following। क्या क्या कंसीडर करना चाहिए? डिटरमाइन that any significant issues, matters, problems that arose during the course of the engagement have been properly considered, resolved and documented। कि डिटरमाइन करोगे that any significant issues हो गए, matters हो गए, problems हो गए जो कि during the audit, during the course of engagement वो निकले होंगे, डिटरमाइन हुए होंगे, वो अप्रोप्रिएटली कंसीडर हुए हैं, वो अप्रोप्रिएटली रिजॉल्व हुए हैं, वो अप्रोप्रिएटली डॉक्यूमेंटेड हुए हैं। तो ये वाली चीज रिव्यूअर को कंसीडर करनी पड़ेगी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। देन second point is about determine that adequate audit evidence or other relevant evidence is in relation to the engagement is obtained। मतलब audit evidence वगैरह obtain किए हैं नहीं। और third thing about that the determine that a significant decision relating to the engagement, use of professional judgment, resolution of significant matters have been properly documented। तो सिंपल सी बात ये कर रखी है, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बोल रखा है कि significant decisions related to engagement have been properly documented or not। तो ये चीज बोल रखी है। Then they talk about the obligation of the practicing unit। प्रैक्टिस यूनिट की क्या क्या ऑब्लिगेशन होंगे? बेसिकली इसमें ये बोल रखा है कि जो रिव्यूअर को एक्सेस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी और असिस्टेंस देनी पड़ेगी। तो ये पहले 3 पॉइंट्स तो सिंपली ये कहते हैं। और चौथा पॉइंट कहता है कि अगर आपके जो रिकॉर्ड्स हैं वो लेजिबल फॉर्म में नहीं है, मतलब वो रीडेबल नहीं है, मतलब वो हमारी लैंग्वेज में जो अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए वैसे नहीं है, देन दे विल पुट दैट इन द लेजिबल फॉर्म। मतलब पहले लिखा हुआ है where any information or matter relevant to the practice unit is recorded otherwise than in a legible form, then the practice unit shall provide and present to the reviewer a reproduction of any such information or matter or of the relevant part of it in legible form। सिंपली ये वाली बात कर रखी है। फिर आता है ऑब्लिगेशन ऑफ द पीयर रिव्यूअर। पीयर रिव्यूअर के क्या क्या ऑब्लिगेशन होते हैं? सिंपली ये वाली बात कर रखी है। पीयर रिव्यूअर का सिंपल सा ऑब्लिगेशन ये है कि दैट द रिव्यूअर शैल नॉट टेक एनी एक्सट्रैक्ट्स। कोई भी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ दीज प्रैक्टिस यूनिट, तो एक्सट्रैक्ट नहीं ले सकते ऑफ द प्रैक्टिसिंग यूनिट क्लाइंट्स फाइल्स और रिकॉर्ड्स एग्जामिन्ड बाय हिम while conducting peer review as part of his working papers। ठीक है, एक्सट्रैक्ट नहीं ले सकते, ये लिमिटेशन है बहुत बड़ी। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करते हैं हम ऊपर, तो यहाँ पे ऑब्वियसली उसको एक्सट्रैक्ट्स लेना अलाउड नहीं होना चाहिए। Then second point is about the reviewer shall complete the review within the prescribed time frame। टाइम फ्रेम हम अभी आगे पढ़ेंगे उसके अंदर, peer review process के अंदर। ठीक है, now let's head to peer review process। There are 4 steps in here and I have compiled and basically summarized all these processes in a page, and you can see over here all the things are covered here in one page only। So I hope you will like this chart. If you do just let me know। All right, so yes, first thing is about selection of practicing unit and appointment of peer reviewer। 3 limits of 7 days here, and just see the highlighted parts first। Let me change the color। Yes, first thing is about declaration by practicing unit to board within 7 days। एक ये वाली limit। Second limit is about practice unit to board within 7 days of the receipt, and the third limit is board to reviewer within 7 days। तो ये 3 limit है। इसमें basically है क्या? When a reviewer, when a practice unit is selected for the review, then a notification is sent by the board to practice unit। This is the first thing, notification to the practice unit by the board। Then a declaration is to be sent by the practice unit to the board within 7 days from the notification date। And as soon as the declaration is sent, then 3 reviewers are given by the 3 reviewers name is given by the board, and the PU is to select one out of those
3 reviewers and intimate the same within 7 days of the receipt. ये वाला point याद रखना. And the third point is board is to intimate the reviewer selected reviewer, that is one out of those 3 reviewers that were given by the uh, board to the practice unit. Then the practice unit selected one, and then the board shall intimate the reviewer that he is being selected for the review and just ask him for the consent. तो वो 7 दिन के अंदर अंदर बोर्ड इंटीमेट करेगा रिव्यूअर को टू सीक हिज कंसेंट. ऑलराइट, तो ये सिलेक्शन ऑफ प्रैक्टिस यूनिट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ रिव्यूअर वाला पॉइंट था. देन प्लानिंग वाला पॉइंट आता है. प्लानिंग में बेसिकली बोल रखा है ऑन इंटीमेशन बाय द बोर्ड ऑफ द रिव्यूअर्स कंसेंट, मतलब जो रिव्यूअर ने कंसेंट दिया होगा अपना, उसका इंटीमेशन देगा बोर्ड टू द प्रैक्टिस यूनिट, एंड द प्रैक्टिस यूनिट देन शैल विद इन 15 डेज. यहाँ पे 15 डेज वाला पॉइंट आ गया. ऊपर 7 दिन वाली चीज 3 टाइम लिमिट गिवन थी 7 डेज की, और अब प्लानिंग स्टेज के अंदर 15 डेज का टाइम लिमिट गिवन है. दैट द प्रैक्टिस यूनिट शैल विद इन 15 डेज फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू द रिव्यूअर. रिव्यूअर को ये 4 इन्फॉर्मेशन देगा. पहली इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चनएयर होएगा, क्वेश्चनएयर पूरा फिल करके देगा अपना, जितना भी क्वेश्चनएयर में क्वेश्चंस वगैरह आज किए जाएंगे, पूछे जाएंगे फ्रॉम द प्रैक्टिस यूनिट बाय द रिव्यूअर, तो वो क्वेश्चनएयर फिल करके देगा. सेकंड थिंग इज अबाउट द कंप्लीट लिस्ट ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट, मतलब जितने भी क्लाइंट्स हैं उसके बाद उसके बारे में बताएगा, उसका नेचर बताएगा कि स्टैट्यूटरी ऑडिट है या फिर कौन सा ऑडिट है, उसकी फीस बताएगा कि कितनी फीस चार्ज करते हैं वो, और क्वेश्चनएयर तो बता ही दिया मैंने आपको पहले. जस्ट अ सेकंड, क्या हो गया ये, हाँ, तो क्वेश्चनएयर तो मैंने बता दिया आपको. फिर कंप्लीट लिस्ट ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट, एंड देन अ नोट ऑन द पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स अडॉप्टेड बाय द प्रैक्टिस यूनिट, की क्या कौन कौन सी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स अडॉप्ट किए जाते हैं बाय द प्रैक्टिस यूनिट. उसमें आपका काफी चीजें आ सकती हैं. इसमें आपको आंसर मैं दिखाया था आपको स्टडी मटेरियल के अंदर से कि क्या क्या उसमें आ सकता है. वेट, प्लानिंग स्टेज के अंदर ये रहा पॉइंट, a note on the policies and procedures. तो उसके अंदर बेसिकली in relation to independence, staff supervision and development, second person review, aid process generally followed in carrying out the assurance services. मतलब कौन कौन से policies और procedures adopt किए जाते हैं by the practice unit for this assurance services, to carry out the assurance services. उसके अंदर हमारा staff supervision and development के बारे में आ गया, independence के बारे में आ गया, second person review के बारे में आ गया. तो ये 3 पॉइंट थे उसके अंदर. That's it. Let's get back to the PDF. Yes, and the fourth point is details of any proceedings against the practice unit or the partner or whatsoever. All right, तो practice unit के against कोई proceeding में चल रही हो, कोई भी partner के against proceeding में चल रही हो, तो वो भी details practice unit reviewer को देगा. तो ये 4 points ये याद कर लेना, ये important है. ठीक है. Yes, then एक point इसमें ये new add हुआ है that the peer review board shall call for information from the UDIN director. हमने level 1 और level 2 entities में भी पढ़ा था. level 2 entities में basically पढ़ा था कि एक particular number से ज्यादा UDIN अगर generate किए जाते हैं then वो level 2 में practice unit count हो जाएगा. तो वो उससे related point है ये वाला, that the peer review board shall call for the relevant information from the UDIN directorate and share the concerned details with the peer reviewer, which shall form part of the peer review. All right. And then about the selection of sample में 3 चीजें बोल रखी हैं. First चीज is about 15 days time limit, which is given to the reviewer, that reviewer shall within 15 days of the information that is given by the practice unit shall have to select the sample and intimate to the practice unit. All right, and then it is about the plan on site review plan करेंगे, and इसको भी intimation देना पड़ेगा 15 दिन पहले to the practice unit, so that practice unit will be able to provide all the details, provide all the things, that is मतलब जितनी भी preparation वगैरह करनी होती है, that it shall be able to prepare, practice unit shall be able to prepare. All right, and the entire process is about 90 days में खत्म हो जाना चाहिए. तो ये वाला point भी अच्छा point है, ये वाला point याद रखना, that the entire process is to be completed within 90 days from the date of notifying the practice unit. मतलब जो सबसे पहला स्टेज था, सबसे पहला प्रोसेस था, सबसे पहला जो स्टेप था, उसके अंदर जब बताया गया था, नोटिफिकेशन दी गई थी by the board to the practice unit that they have been selected for the review. तो उसके 90 दिन के अंदर अंदर
मतलब 3 महीने के अंदर अंदर, 90 डेज याद रखना है वैसे तो, 90 डेज के अंदर अंदर खत्म हो जाना चाहिए आपका पीयर रिव्यू। ठीक है, तो प्लानिंग स्टेज में ये था। नाउ कम्स देन कम्स द एग्जीक्यूशन पार्ट। एग्जीक्यूशन पार्ट में 4 चीजें बोल रखी है। पहली चीज वाज अबाउट ऑन साइट विजिट्स। ऑन साइट विजिट जो होती है, जो ऊपर पड़ी थी हमने, वो 7 to 15 वर्किंग डेज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पहली चीज, रिव्यूअर को 7 से 15 दिन से ज्यादा, 15 दिन से ज्यादा नहीं जाना चाहिए ऑन साइट विजिट के लिए। बाकी नॉर्मल वर्क एज इन देयर ऑफिस ही करना चाहिए। तो ऑन साइट विजिट शुड नॉट एक्सीड 7 to 15 वर्किंग डेज। देन द क्वेश्चन इज अबाउट कंप्लायंस रिव्यू जनरल कंट्रोल्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। इसके जो 5 पॉइंट्स बनते हैं, इंडिपेंडेंस हो गया, इसका एक निमोनिक है आईमोसो, इमोसो बोल सकते हो आप। तो इसमें एक इंडिपेंडेंस वाला पॉइंट है। इंडिपेंडेंस, मेंटेनेंस ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स एंड स्टैंडर्ड्स आउटसाइड कंसल्टेशन एंड ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टाफ रिक्रूटमेंट, सुपरविजन एंड डेवलपमेंट। और यही सेम पॉइंट्स आपकी रिपोर्टिंग में भी देखेंगे, वो भी अभी हम देखते हैं। तो कंप्लायंस रिव्यू जनरल कंट्रोल्स, इसको एक बार रीड आउट कर लो। दैट कंप्लायंस रिव्यू ऑफ द फॉलोइंग जनरल कंट्रोल्स फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ डिग्री ऑफ रिलायंस टू बी प्लेस्ड अपॉन देम फॉर इफेक्टिव रिव्यू। ऑलराइट, तो इसके 5 पॉइंट्स, ये 5 फैक्टर्स बेसिकली, तो इनको याद रखना। देन इट इज अबाउट सिलेक्शन ऑफ एश्योरेंस सर्विस एंगेजमेंट फॉर रिव्यू। इसमें कुछ फैक्टर्स गिवन है, वो आप स्टडी मटेरियल से देख लेते हैं एक बार कि कौन कौन से सिलेक्शन के एश्योरेंस एंगेजमेंट, एश्योरेंस सर्विस एंगेजमेंट जो रिव्यू के लिए सेलेक्ट करेगा रिव्यूअर, उसके क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द हमारा प्रैक्टिस यूनिट हो गया, ऑफ द सॉरी ऑफ द क्लाइंट्स हो गया, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द क्लाइंट्स हो गया, मेथोडोलॉजीज यूज्ड वगैरह हो गया। तो इसको एक बार आप स्टडी मटेरियल से देख लेते हैं। एग्जीक्यूशन स्टेज पे, yes, this is the point. Selection of assurance engagement for review. The number of assurance engagement to be reviewed shall depend upon: first, standard of quality controls SQC prevailing; size and nature of assurance service engagement that I have already told you; third is methodology generally adopted by the practice unit in providing assurance services, again; and the number of partners members involved in assurance service engagement; and the number of locations branch office of the practice unit. तो ये मेन हमारे 5 पॉइंट बनते हैं। ऑलराइट, देन इट इज अबाउट रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड्स। कंप्लायंस अप्रोच के बारे में बोल रखा है, और एक सब्सटैंटिव अप्रोच जो हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं पहले भी, तो उसी को ही रीफ्रेस किया हुआ है, कुछ अलग तरीके से बता रखा है। तो ये स्टडी मटेरियल से आप नॉर्मली हो जाना चाहिए। ऑलराइट, देन कम्स द रिपोर्टिंग पार्ट। रिपोर्टिंग पार्ट में कुछ चीजें बता रखी है, मैं आपको नॉर्मली वैसे बता देता हूँ। दैट इज, पहली चीज, अगर उसको रिव्यूअर को लगता है कि कुछ दिक्कत है, कुछ डेफिशिएंसीज हैं, देन दे विल हैव टू इशू अ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट टू द प्रैक्टिस यूनिट फर्स्ट। ठीक है, फिर प्रैक्टिस यूनिट उसका रिप्लाई करेगा। फिर उसका रिप्लाई से अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है, देन तो नॉर्मल रिपोर्ट जाएगी बोर्ड को। रिव्यूअर फाइनल रिपोर्ट देता है बोर्ड को। ठीक है, तो अगर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है आफ्टर डेफिशिएंसीज का रिप्लाई, सब कुछ नॉर्मल लगता है, देन नॉर्मल रिपोर्ट जाएगी। बट अगर मॉडिफाइड रिपोर्ट जाती है, देन मॉडिफाइड रिपोर्ट के बाद एक फॉलो ऑन लेना पड़ता है, बाद में फॉलो अप लेना पड़ता है, तो उसको फॉलो ऑन बोलते हैं। देन फॉलो ऑन रिव्यू वो 1 साल के बाद कंडक्ट करते हैं। बट अगर आईसीएआई चाहे, अगर पीयर रिव्यू बोर्ड चाहे, देन 6 मंथ्स एटलीस्ट, मैक्सिमम मिनिमम 6 मंथ्स तक का टाइम भी हो सकता है। मतलब 6 मंथ से कम का नहीं होएगा फॉलो ऑन, बट 6 मंथ से ऊपर हो सकता है। ठीक है, मतलब 1 साल से नीचे, बट 6 मंथ्स के ऊपर। ऑलराइट, तो एक बार रीड कर लेते हैं। इसमें ये वाला पॉइंट दोबारा, इसमें इमोसो वाला पॉइंट आ जाएगा, इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस वाला आ गया। वेट, यस, तो इंडिपेंडेंस वाला पॉइंट आ गया। मेंटेनेंस ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स एंड स्टैंडर्ड्स आउटसाइड कंसल्टेशन और ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, स्टाफ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये वाला इसमें बेसिकली बोल रखा है दैट पीयर रिव्यू रिपोर्ट शैल एड्रेस हिज रिपोर्ट ऑफ कंप्लायंस और अदरवाइज ऑन द फॉलोइंग एरियाज ऑफ कंट्रोल। तो ये एरियाज ऑफ कंट्रोल है बेसिकली, तो इस पे रिपोर्ट जाएगी। ठीक है, इन पांचों को, एरियाज ऑफ कंट्रोल को माइंड में रखते हुए रिपोर्ट बनेगी। ठीक है, इंडिपेंडेंस के ऊपर हो गया। इंडिपेंडेंस मतलब प्रैक्टिस यूनिट जो हो रही है, जो एश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड कर रही है, कि वो इंडिपेंडेंस को ध्यान में रख रही है, नहीं रख रही। आउटसाइड कंसल्टेशन के बारे में, ये SA 220 अगर आपने पढ़ा है, तो आपको वो वाला वहां से रिलेट भी कर सकते हो आप, तो वो चीज रहेगी, बट उस पर अभी मैं नहीं जाऊंगा। ऑलराइट, ठीक है, तो मेंटेनेंस ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स एंड स्टैंडर्ड्स, इसका पॉइंट आ गया। आउटसाइड कंसल्टेशन वाला पॉइंट आ गया।
स्टाफ रिक्रूटमेंट वाला पॉइंट आ गया, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन वाला पॉइंट आ गया अगेन, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज डिस्कशन कम्युनिकेशन ऑफ फाइंडिंग्स। फाइंडिंग्स मगर वही वाली बात बोली है मैंने, दैट दे विल हैव टू विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द फाइंडिंग्स, दे विल हैव टू रिस्पॉन्ड टू द फाइंडिंग्स। मतलब जो रिव्यूअर होगा वो प्रैक्टिस यूनिट को अपनी जितने भी डेफिशिएंसीज अगर उसको दिखती हैं देन वो कम्युनिकेट करेगा, और फिर उसके बाद जो प्रैक्टिस यूनिट है ही विल रिप्लाई विद इन 15 days आफ्टर द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द फाइंडिंग्स, ठीक है। उसको फाइंडिंग्स मिलेगी तो 15 days के अंदर अंदर उसको एक रिप्लाई देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। फिर अगर वो रिस्पॉन्स से सेटिस्फाई हो जाता है, दैट इज if the reviewer is satisfied with the reply received from the practice unit, he shall submit a peer review report which is the final report to the board along with the initial findings ही देना पड़ेगा, response देना पड़ेगा practice unit का, and the manner in which the responses have been dealt with by the practice unit, ठीक है। फिर next is about again in case the reviewer is of the opinion that the response is not satisfactory, then the modified report shall be submitted। एंड मॉडिफाइड रिपोर्ट के साथ साथ फिर रिव्यूअर बोर्ड को क्या क्या देगा साथ में, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट देगा, उसका रिस्पॉन्स देगा, और साथ ही साथ बाकी मॉडिफाइड रिपोर्ट का रीजंस भी देगा, ठीक है। एंड देन इन केस ऑफ अ मॉडिफाइड रिपोर्ट a follow on will be taken after a period of 5 years, after a period of 1 year from the date of issue of report as mentioned in B above, ठीक है। और shall फिर उसके बाद the period of one year may be reduced but shall not be less than 6 months, ठीक है। So now this is the end of this chapter and we have completed it along with all the amendments. So I hope you will like this video. पसंद आएगा, पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना और कमेंट करना, कुछ क्वेरीज हो तो पूछ लेना। व्हाट्सएप पे मैं अवेलेबल हूँ, टेलीग्राम पे मैं अवेलेबल हूँ। टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको सारा, तो वो भी आप देख सकते हो आराम से। तो यस, हो गया सब कुछ कंप्लीट पीयर रिव्यू चैप्टर। अब मिसलेनियस प्रोविजंस का मैंने 3 पार्ट्स ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो लॉ की बात कर रहा हूँ मैं अभी। मिसलेनियस प्रोविजंस का आपको आई सेक्शन पे दिख रहा होगा, तो वहां से देखनी हो वीडियोस। तो गवर्नमेंट कंपनी हमने कवर कर लिया, गवर्नमेंट कंपनीज कर लिया हमने, रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनीज फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज भी कर लिया, तो वो 3 हम कर चुके हैं ऑलरेडी। अभी निधि रूल्स वगैरह रहते हैं, निधि रूल्स वगैरह कर लेंगे नेक्स्ट में। और ऑडिट कमेटी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का टारगेट रहेगा इस वीक का, तो वो भी कंप्लीट करते हैं अभी ऑडिट में, तो वो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारा, ठीक है। तो आपका ये अमेंडेड पार्ट पीयर रिव्यू का तो कंप्लीट कर लिया आज, एंड आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को, थोड़ा ग्रो करते हैं इस चैनल को भी यार। ऑल राइट, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर staying with me for this long, and I hope this video will help you get marks in your exams as well. Thank you.